Welcome students. Welcome to the e-learning session of accountancy. Today we'll start with the second chapter of your syllabus, that is the first book. This is the partnership chapter. Okay, this is our you can say a group of chapters contained in one. Okay, so the first chapter that we will begin under the partnership is accounting for partnership firms. Accounting for partnership firms and the fundamentals. Okay, it is the fundamentals that we'll cover in today's session. The topics that we will cover under this in today's session are the nature of partnership firms, their meaning and definition, the features, rights of a partner. Okay, next is partnership deed, and the last one is LLP, that is limited liability partnership. Okay, so these are the topics we'll cover in today's session under this chapter. Okay, so let's begin with the first topic in today's session, that is the nature of partnership firms. Partnership firms की nature क्या है? ठीक है? So partnership firm, its nature can be stated in you can say two ways. ठीक है? One is from the accounting angle and the other one is from the legal angle. Accounting angle से अगर हम बात करें, if we talk about the accounting view, partnership firms are treated as separate entity, okay, as a separate entity which are separate from the partners. ठीक है, तो पार्टनरशिप को पार्टनरशिप फर्म से अलग रख के देखा जाता है अकाउंटिंग में. सो इन अकाउंटिंग वी ट्रीट पार्टनरशिप फर्म एज अ सेपरेट इंडिविजुअल और वी ट्रीट देम एज हैविंग अ सेपरेट एग्जिस्टेंस. हम मानते हैं कि उनकी एग्जिस्टेंस उनके मेंबर से या पार्टनर से अलग है. ठीक है, सो पार्टनरशिप फर्म इज अ सेपरेट पर्सन एंड partners are separate. Okay, but when we talk about the legal angle, we talk about the legal view of the partnership firms. Then partnership firms from the legal point of view are not treated as separate. That means partners and partnership firms are treated as one and the same. ये माना जाता है कि there is no separate entity as such as far as partnership firms are concerned. That means partnership firms are the same as their partners. They have no separate identity. They have no separate existence in the eyes of the law. ठीक है, अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ पार्टनरशिप फर्म्स को पार्टनर से अलग रख के नहीं देखता है. ठीक है, लेकिन जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं, अकाउंटिंग की फील्ड में पार्टनरशिप फर्म को और पार्टनर्स को अलग अलग रख के देखा जाता है. ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है, ये एक यूनिक नेचर है पार्टनरशिप फर्म्स का. ठीक है, now we move on to the definition of partnership. Partnership firm का जो definition है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 में दिया हुआ है. ओके, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें सेक्शन नंबर 4, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 defines the partnership firm as follows. Now partnership firm का जो definition है, आप फोकस करिए, आप ध्यान दीजिए कि वो अंडर इन्वर्टेड कॉमास दिया हुआ है. ओके, इट हैज बीन कोटेड. कोटेड मतलब व्हेनेवर अ स्टेटमेंट इज कोटेड, ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है वो एज इट इज आपको लिखना होगा. अगर आपसे पार्टनरशिप फर्म का डेफिनेशन मांगा जाए तो आपको ये डेफिनेशन अंडर इन्वर्टेड कॉमा एज इट इज लिखना है, उसमें कोई चेंज आप नहीं करोगे. ओके, यू विल राइट इट एज इट इज. सो लेट्स बिगिन द डेफिनेशन. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. ठीक है, यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स पे अंडरलाइन किया हुआ है. What does this mean? आपको इस डेफिनेशन में उन वर्ड्स पे फोकस करना है, उन वर्ड्स को इम्पोर्टेंस देनी है. ठीक है, सबसे पहले है क्या है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन. इट इज अ रिलेशन बिटवीन होम, बिटवीन पर्सन. कुछ लोगों के बीच के रिलेशन को या रिश्ते को हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं. कब? दे हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस. जब वो लोग एक अग्रीमेंट में होते हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस. मतलब अग्रीमेंट भी होना जरूरी है. और किस चीज का अग्रीमेंट होना जरूरी है? अग्रीमेंट हैज टू बी टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस. एक बिजनेस होना जरूरी है.
दैट मीन्स कोई और एक्टिविटी अगर आप इन्वॉल्व हो, है ना, इफ यू आर इन्वॉल्व इन एनी अदर एक्टिविटी अदर देन बिजनेस, तो हम उसको पार्टनरशिप का नाम नहीं देंगे फ्रॉम द इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पर्पज के लिए बनती है। अगर आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए हैं या कोई और एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो हमारे पार्टनरशिप के डेफिनेशन को में नहीं आती, ठीक है। तो पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है, इट इज स्ट्रिक्टली फॉर बिजनेस एक्टिविटी, ओके। So partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business. Obviously, आप जब प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, बिजनेस की प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, तो बिजनेस के लॉसेस भी आपको बियर करने होंगे। दैट मीन्स अगर पार्टनर्स ने एग्रीमेंट बनाए, द पार्टनर्स हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, देन दे ऑटोमेटिकली विल बी शेयरिंग द लॉसेस एज वेल, ठीक है। तो लॉसेस भी वो ही आपस में बांटेंगे, झेलेंगे, बियर करेंगे, ओके। कैरिड ऑन बाय ऑल और देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये जो बिजनेस है, या तो सारे लोग मिलकर चलाएंगे, ऑल द पार्टनर्स टुगेदर विल रन द बिजनेस, और एनी वन पार्टनर और वन और मोर पार्टनर्स कैन इंडिविजुअली रन द बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। मतलब क्या है कि या तो सारे लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, या फिर बिजनेस सब कर रहे हैं, लेकिन सबके बिहाफ में कोई एक पर्सन, एक पार्टनर ही एक्टिव है, एक पार्टनर ही सब कुछ कर रहा है ना, बाकी पार्टनर कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी अग्रीमेंट ही इस तरह की है कि एक पार्टनर को उन लोगों ने वो राइट दी है टू रन द बिजनेस ऑन देयर बिहाफ। दैट मीन्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिंग फॉर ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल मतलब आप किसी के बिहाफ में काम कर रहे हो, है ना। तो देयर इज अ काइंड ऑफ ट्रस्ट, देयर इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप जिसको हम बोलते हैं एजेंसी रिलेशनशिप। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, ठीक है। तो प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप भी हमको दिखाई दे रहा है इस डेफिनेशन में। So these are very very important points that you have to remember in a partnership form of business, ठीक है। तो partnership, once again partnership has been defined under the Indian Partnership Act 1932. Indian Partnership Act 1932 में पास हुआ था, ठीक है। Under that section 4 defines the partnership firm. तो partnership firm क्या होती है? It is a relation, okay, it is a relation between persons who have agreed to share the profits of a business. It is carried on by all or any of them acting for all, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पार्टनरशिप के फीचर्स की बात करते हैं। अभी जो पॉइंट्स हम लोगों ने रेज किए, जो पॉइंट्स अंडरलाइन है, ये पॉइंट्स हम अब कवर करेंगे इंडिविजुअली। सी व्हाट आर द फीचर्स। फीचर्स क्या है? टू और मोर पर्सन। मैंने यहाँ पे पर्सन्स में अंडरलाइन किया था। पर्सन्स मतलब एस लगा हुआ है, प्लूरल है, दैट मीन्स मोर देन वन पर्सन। एक सिंगल पर्सन कभी भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता। पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है, ठीक है। तो टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन इज द मेन फीचर। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, प्री रिक्विजिट ऑफ पार्टनरशिप। प्री रिक्विजिट मतलब सबसे पहले रिक्वायरमेंट है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस की कि उसमें एक से ज्यादा लोग होने चाहिए, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा। सेकेंड थिंग इज एन अग्रीमेंट, जो कि हम लोगों ने अभी देखा। पर्सन हैविंग अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। तो अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। ये अग्रीमेंट कैसा हो सकता है? ये रिटन भी हो सकता है, ये ओरल भी हो सकता है, ठीक है। अग्रीमेंट मतलब समझौता। अग्रीमेंट मतलब आपकी आपसी कमिटमेंट, है ना। वो एक ओरल भी हो सकती है, वो रिटन भी हो सकती है। ऑब्वियसली रिटन अग्रीमेंट जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है दैट यू कैन नॉट हैव ओरल एग्रीमेंट। तो देयर हैज टू बी एन एग्रीमेंट, दैट्स ऑल। एग्रीमेंट होना जरूरी है, म्यूचुअल एग्रीमेंट, एक दूसरे के बीच में एग्री करना जरूरी है, ठीक है, सहमति होना चाहिए। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस। जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया था, बिजनेस होना जरूरी, प्रॉफिट का मोटिव होना जरूरी है। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, कोई और एक्टिविटी कर रहे हो, दैट इज नॉट पार्टनरशिप, ओके। दैट मीन्स अगर आप चैरिटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए हो, तो हम उसको अकाउंट्स के तौर पे वी विल नॉट कॉल इट अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, क्योंकि पार्टनरशिप इज ऑलवेज फॉर अ बिजनेस मोटिव, ठीक है। तो हमारा मोटिव जो होना चाहिए वो बिजनेस का होना चाहिए और प्रॉफिट अर्निंग का होना चाहिए, ना कि चैरिटेबल, ओके। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो अग्रीमेंट की बात हम लोगों ने की, द अग्रीमेंट वी वर टॉकिंग अबाउट इज अबाउट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। हम प्रॉफिट की शेयरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फीचर जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट, बिजनेस तो है ही, प्रॉफिट मोटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो काम कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, वो प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से कर रहे हो. यू आर एमिंग टू अर्न प्रॉफिट, है ना. यू आर नॉट डूइंग इट फॉर चैरिटी, एंड ऑल्सो यू हैव अग्रीड टू शेयर दैट प्रॉफिट. वो जो प्रॉफिट आप अर्न करने के उद्देश्य से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, यू हैव ऑल्सो डिसाइडेड टू शेयर दैट प्रॉफिट अमंग दोज पीपल. जो लोगों ने पार्टनरशिप की है उनके बीच में ये प्रॉफिट का बंटवारा होगा, शेयरिंग होगी. ठीक है. प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन. जब ऑब्वियसली बिफोर मूविंग टू दिस, मैंने अभी भी बताया कि जब भी प्रॉफिट की बात आ रही है तो ये बोला नहीं गया, लेकिन ये ऑब्वियस है. सम थिंग्स आर स्टेटेड क्लियरली एंड सम थिंग्स आर नॉट स्टेटेड बट दे आर ऑब्वियस. ऑब्वियस मतलब माना हुआ है कि अगर आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो तो इन केस देयर इज अ लॉस, वो भी शेयर होगा. ठीक है. अब हम आते हैं पॉइंट पे, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन. प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन जिसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन. ठीक है. ये जो मैंने पॉइंट अभी रेज किया था ना, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. यहाँ पे हमने एक म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप देखा है. एजेंसी रिलेशन मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन. प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन. प्रिंसिपल एजेंट मतलब एक पर्सन कोई काम कर रहा है, इफ अ पर्सन इज डूइंग समथिंग, ओके, हिज और हर एक्ट कैन बाइंड यू, ओके, इफ यू आर हिज और हर पार्टनर. मतलब क्या है? दो लोग या दो से ज्यादा लोग पार्टनर, सपोज ए बी सी आर 3 पार्टनर. ठीक है. ए अगर कोई भी एक्टिविटी करता है, कोई भी काम करता है, तो ऑटोमेटिकली ऑल्दो ए कर रहा है लेकिन बी और सी उस काम से बंध जाएंगे. बंध जाना मतलब दे आर बाउंड बाय द एक्ट ऑफ ए. वैसे ही बी अगर कोई काम करता है तो ए और सी के बिहाफ में कर रहा है, मतलब बी और सी भी उसके काम के लिए जिम्मेदार है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ बी. वैसे ही सी अगर कोई काम करेगा तो सी के एक्ट के लिए हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? ए एंड बी. मतलब ए खुद तो रिस्पॉन्सिबल रहेगा ही, बी खुद रिस्पॉन्सिबल रहेगा, सी भी खुद रिस्पॉन्सिबल रहेगा, लेकिन एक दूसरे के एक्ट के लिए भी वो लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन. प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन व्हेन योर एक्ट कैन बाइंड द अदर पर्सन. आपका जो एक्ट है उसके लिए सारे लोग अगर रिस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब आपके जो पार्टनर्स हैं, देन वी कॉल इट अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. ठीक है. तो अगर फर्म कोई भी, अगर हम फर्म के नाम पे कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्म के यू कैन से हु आर द बैकबोन्स ऑफ द फर्म, हु आर एक्चुअली ऑपरेटिंग द फर्म? द पार्टनर्स. ठीक है. सो पार्टनर्स विल बी बाउंड बाय द डिसीजंस विच आर टेकन और द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म. अगर फर्म ने कोई काम किया है एज अ होल, तो फर्म के पीछे कौन है? पार्टनर्स हैं. तो वो पार्टनर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फर्म की एक्टिविटीज के लिए, उसके डिसीजंस के लिए. ठीक है. उसी तरह से एक पार्टनर जो है अगर कोई भी काम करता है उससे फर्म भी बाउंड होगी और बाकी पार्टनर्स भी बाउंड होंगे. सो दिस इज अ प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप. ठीक है. आप फर्म के बिहाफ में काम भी कर सकते हो. अगर आप फर्म के बिहाफ में काम कर रहे हो देन यू आर द एजेंट ऑफ द फर्म, है ना. एंड इफ you are acting on behalf of firm, that means firm is your principal. फर्म ने वो राइट दी है आपको, है ना, कि आप फर्म के बिहाफ में काम करो. सो देयर इज म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन है सारे पार्टनर्स के बीच में और फर्म और पार्टनर्स के बीच में. देन बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि सारे लोग भी काम कर सकते हैं. ऑल द पार्टनर्स कैन बी एक्टिव, okay, but it is not necessary, it is not a rule कि सारे पार्टनर्स का एक्टिव होना जरूरी है. ठीक है. सारे पार्टनर्स एक्टिव हो भी सकते हैं, सारे पार्टनर्स एक्टिव नहीं भी हो सकते. कोई एक या एक से ज्यादा पार्टनर भी, सपोज यार 10 पार्टनर्स, तो 10 में से सिर्फ एक पार्टनर भी एक्टिव हो सकता है जो कि सबके बिहाफ में काम कर सकता है. ओके. सो ऑल पार्टनर्स नीड नॉट बी एक्टिव. अगर एक्टिव है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक्टिव नहीं है, सिर्फ एक या दो लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोग सिर्फ दे आर जस्ट अ पार्टनर, देन ऑल्सो इट इज ओके. दैट मीन्स इट इज अलाउड कि एक या एक से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं दूसरों के बिहाफ में. ठीक है. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होगी. काम भले एक पर्सन कर रहा है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ ऑल द पार्टनर्स. ओके. एंड सेपरेट एग्जिस्टेंस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है. मतलब अगर when we are talking about partnership firm, we are talking about the partners. ठीक है. That means अगर हम पार्टनरशिप फर्म की कोई भी बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम
वी आर रेफरिंग टू द पार्टनर्स ओनली, पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल है। मतलब अगर सपोज करिए फर्म के जो क्रेडिटर्स हैं, है ना, फर्म इज अनेबल टू रीपे द मनी टू द क्रेडिटर्स, तो वो पैसा क्रेडिटर्स किससे ले सकते हैं, पार्टनर से ले सकते हैं। व्हाई? बिकॉज द फर्म इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द पार्टनर। फर्म की जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो पार्टनर से अलग नहीं है ना। पार्टनर्स की जो इंडिविजुअल पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो भी जरूरत पड़ने पे यूज की जा सकती हैं। ओके, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट फर्म इज नॉट एग्जिस्टिंग सेपरेटली फ्रॉम इट्स पार्टनर। ठीक है, तो वी हैव कवर्ड द नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, we have covered the definition and the basic features of a partnership form of organization. Now we will move on to the next topic, that is the rights of a partner. Okay, so now we move on to the third topic, that is the rights of a partner. ठीक है, एक पार्टनर के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या राइट्स है, राइट्स मतलब उसके क्या क्या अधिकार हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। ठीक है, so rights of a partner under the partnership firm. First is to share the profits and losses in the agreed ratio. ठीक है, हर एक पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं, every partner has the right to share the profits as well as the losses. हम लोग सिर्फ प्रॉफिट पे मेंशन करते हैं क्योंकि लॉसेस ऑब्वियस होता है ना, तो वी आर ओनली मेंशनिंग द प्रॉफिट। तो हर एक पार्टनर की राइट है, अधिकार है कि वो जो अग्रीमेंट है उसके हिसाब से प्रॉफिट उसको मिले, है ना। जो पार्टनरशिप की जो प्रॉफिट है उसको अग्रीमेंट के हिसाब से जितना अग्री किया गया है उस रेशियो में वो शेयर कर सके। ठीक है, सो इट इज हिज और हर राइट। नेक्स्ट इज टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर को बिजनेस के कंडक्ट में, मतलब उसको रन करने में, बिजनेस को चलाने में शामिल होने की राइट है। ठीक है, दैट मीन्स हम लोगों ने डेफिनेशन में क्या देखा था, इट इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो हर चीज एग्रीमेंट पे बेस्ड है। अगर सबने एग्री किया है कि सिर्फ एक ही पर्सन सबके बिहाफ में काम करेगा, देन इट इज ओके। अदरवाइज ईच एंड एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन कंडक्टिंग द बिजनेस, टू बी एक्टिव इन द बिजनेस। ठीक है, हर एक पार्टनर को राइट है कि बिजनेस के जो भी काम है उसको वो करे, उसमें वो शामिल किया जाए। ओके, टू बी कंसल्टेड मैटर्स। अगर कोई भी बिजनेस रिलेटेड मैटर है, बिजनेस रिलेटेड कोई भी मैटर हो, है ना, उसमें उसकी सलाह ली जाए, उसको शामिल किया जाए, उससे पूछा जाए। तो एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू नो अबाउट व्हाट आर द ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस। पार्टनरशिप फर्म में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो भी मैटर्स है पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट जो भी मैटर है, हर एक मैटर के बारे में उसको पता होना चाहिए। उसको उसकी राइट है टू नो अबाउट द बिजनेस मैटर्स एंड टू बी कंसल्टेड, मतलब उससे पूछा भी जाना चाहिए, सिर्फ नॉलेज में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, तो उस डिसीजन मेकिंग का वो भी पार्ट होना चाहिए, उसकी राय भी ली जानी चाहिए। ओके, हिज और हर ओपिनियन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये जरूरी है कि उसका ओपिनियन भी पूछा जाए। ओके, तो उसकी कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, every partner should be consulted while taking the business decision. Next is to inspect and have a copy of accounts. Inspection मतलब देखना, inspect करना मतलब to see. Okay, so every partner has a right to check or see the accounts. Okay, accounts of the business. जो partnership firm के जो भी accounts हैं, जो भी records है, financial records, उनको वो चेक करे, इसकी राइट है उसको। ठीक है, so he or she can ask for the accounts and can go through the accounts, they can see the accounts, also they can take a copy of that if they want. अगर उनको उसकी कॉपी चाहिए, okay, they can take a copy of that. So they do not only have the right to see but also have the copy. तो इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, साथ में एक उसकी कॉपी भी ले सकते हैं if they want. Next is to disallow new admission. To disallow new admission मतलब अगर कोई नए पार्टनर को ज्वाइन करना है, okay, suppose ABC 3 partners are there at present and they want or another person B wants to join, या फिर A और B wants D to join, है ना। A और B जो चाह रहे हैं वो D को ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं as new partner, they want to admit D as a new partner and D also wants to join, but C does not want, C को नहीं चाहिए कि D आए, है ना। C को लग रहा है कि उसका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा डी के आने से, तो C has the right to disallow the admission of D.
सी बोल सकता है, सी इंडिविजुअली अगर एक अकेला भी है तो उसके ये राइट है टू से दैट आई डू नॉट अग्री टू दिस एडमिशन, न्यू एडमिशन। ठीक है, तो कोई नया पार्टनर तब तक नहीं आएगा जब तक सारे पार्टनर्स अग्री न करें। तो म्यूचुअल अग्रीमेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई एक पार्टनर भी मना कर देगा तो नया पार्टनर नहीं आएगा बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस से नए पार्टनर के लिए आने के लिए टू एडमिट अ न्यू पर्सन इनटू द बिजनेस एज पार्टनर, all the partners must agree to it. ठीक है, if a single partner does not agree, then the new person cannot be admitted as a partner. ठीक है, तो ये एक राइट है हर एक इंडिविजुअल पार्टनर की कि वो मना कर दे, टू से टू डिसअलाउ, टू से नो टू अ इनकमिंग पार्टनर। एक नए पार्टनर के एडमिशन के लिए वो मना कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस जॉइंट ओनरशिप। हर एक पार्टनर की जॉइंट ओनरशिप है, मतलब टुगेदर दे आर ओनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के जो भी एसेट्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, वो किसी एक पार्टनर की नहीं है, वो सभी पार्टनर्स की जॉइंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, एवरी पार्टनर इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, नॉट इंडिविजुअली बट जॉइंटली। अकेले नहीं है कोई भी ओनर, सबकी एक साथ में उस पर ओनरशिप है। ठीक है, दे आर द जॉइंट ओनर। एंड देन टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब ये कौन सा लोन है? दिस इज द लोन विच इज गिवन बाय वन पार्टनर टू द फर्म। अगर किसी एक या एक से ज्यादा पार्टनर ने बिजनेस को यानी अपनी फर्म को लोन दे के रखा हुआ है, ठीक है, अपनी फर्म को लोन दे के रखा है, तो उनको एक राइट है कि वो इंटरेस्ट मिले। दे हैव द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट के हिसाब से मिलेगा। इफ देयर इज एन एग्रीमेंट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो अग्रीड है, उसके हिसाब से मिलेगा उनको इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर देयर इज नो सच एग्रीमेंट अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन each and every partner who is giving the loan to the firm, not the company, to the firm, have the right to receive at least at the rate of 6% interest. Okay, 6% per annum. 6% per annum के हिसाब से उनको इंटरेस्ट मिलना ही होगा। ठीक है, अगर अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट के हिसाब से मिलेगा। दे कैन गेट इवन अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट इफ देयर इज नो सच एग्रीमेंट देन दे कैन गेट 6%. ओके, नेक्स्ट इज टू बी इंडेमनिफाइड। इंडेमनिफाइड का मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना रीइंबर्समेंट। रीइंबर्स होना मतलब सपोज अ पार्टनर हैज स्पेंट हिज पर्सनल मनी, ओके, फॉर द बिजनेस, फॉर द फर्म। ठीक है, फर्म के काम में उसने अपने पर्सनल पैसा खर्च किया है। इफ अ पार्टनर इज स्पेंडिंग हिज पर्सनल मनी, ओके, फॉर द business operation, for running the business of the partnership firm, then that partner has a right to get it reimbursed. जो पैसा उसने खर्च किया है वो उसको reimburse हो जाए। indemnify होना मतलब वापस मिलना। ठीक है, फर्म उसको वापस करेगा वो पैसा। ठीक है, so this is his right। हर एक पार्टनर जो अपने पॉकेट से खर्च कर रहा है बिजनेस के लिए, उसको वो पैसा बिजनेस से रिटर्न मिलेगा। दिस इज हिज और हर राइट। एंड देन द लास्ट वन इज टू रिटायर गिविंग नोटिस। हर एक पार्टनर के पास राइट है टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप। जैसे एडमिशन के लिए उनको अग्री करना पड़ता है, वैसे रिटायरमेंट के लिए उनको नोटिस देना पड़ता है। हर एक पार्टनर के पास राइट है रिटायर होने का, लेकिन बिफोर रिटायरिंग he or she has to give a notice to the firm that they intend to retire। उनका इंटेंशन है रिटायर होने का। ठीक है, तो जो भी उनका इंटेंशन है उसकी एक नोटिस उनको टाइमली फर्म को देनी पड़ेगी। बट दे हैव द राइट टू रिटायर, मतलब उनको राइट है कि वो जब चाहे रिटायर हो सकते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, तो if they do not want to continue the relationship of partnership, if they do not want to be the anymore the partner of the firm, then that person can retire, but he or she has to give the notice। ठीक है, तो ये सारे हमारे राइट्स हैं एक पार्टनर के अंडर द पार्टनरशिप फर्म। वंस अगेन वी विल गो थ्रू देम वेरी फास्ट। सबसे पहले ईच एंड एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, प्रॉफिट शेयर करें तो ऑब्वियसली दे हैव टू बियर द लॉसेज ऑल्सो, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दे हैव टू डू इट इन द अग्रीड रेशियो। जो रेशियो अग्रीड है उसी रेशियो में वो शेयर कर सके, ये उनकी राइट है। ओके, द नेक्स्ट वन इज टू पार्टिसिपेट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए उनका जो एक्टिव होना उनके राइट है। ओके, दे वांट टू बी एक्टिव इन रनिंग द बिजनेस, इफ दे वांट टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द बिजनेस, then they can do so। ठीक है, he or she has the right, every partner has the right
to be consulted with in the business matters. कोई भी business related matter हो, कोई भी decision लिया जा रहा है business में, उसमें उनकी consultation, उनकी सहमति, उनकी राय बहुत important, ठीक है, उनकी सहमति, उनकी राय बहुत important, उनकी opinion matters. To inspect and have a copy of accounts जो भी है, financial records जो भी है फर्म के, उनको वो न केवल इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मतलब न केवल देख सकते हैं, बल्कि उसको कॉपी भी अपने पास रख सकते हैं. नेक्स्ट इज दे कैन एनी पार्टनर कैन डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. कोई नया पार्टनर आना चाह रहा है बिजनेस में या कुछ पार्टनर्स को लाना चाह रहे हैं, तो कोई एक या एक से ज्यादा पार्टनर जिनकी भी इच्छा नहीं है वो मना कर सकते हैं. एंड इफ देयर इज नॉट अग्री, नो न्यू पर्सन कैन एंटर द फर्म, न्यू पार्टनर, ठीक है. जॉइंट ओनरशिप है, हर एक पार्टनर की पार्टनरशिप प्रॉपर्टीज पे जॉइंट ओनरशिप है. इंडिविजुअली कोई ओनर नहीं है, लेकिन जॉइंटली सब ओनर है, ठीक है. टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के रेट से अगर इंटरेस्ट मिलेगा, अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं, और अग्रीमेंट है अगर, तो जो अग्रीड रेशियो है, अग्रीड रेट है, उस रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा हर एक पार्टनर को जिसने पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म को लोन दे के रखा है, ठीक है. हर एक पार्टनर जो अपने पॉकेट से वट एवर मनी being spent by a partner from his or her pocket will be reimbursed by the firm. Okay, and the last one is each partner has the right to retire whenever he or she wants by giving a proper notice. Okay, तो ये सारे हमारे rights थे. अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की. पार्टनरशिप डीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग इट इज कंपल्सरी, आई एम नॉट सेइंग इट इज कंपल्सरी, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एज आई टोल्ड यू दैट पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है अग्रीमेंट, है ना. हर पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल अग्रीमेंट होना जरूरी है. तो इट इज अ रिलेशनशिप विच इज बेस्ड ऑन अग्रीमेंट. सो अग्रीमेंट इज इम्पॉर्टेंट एंड अग्रीमेंट कैन बी ओरल, अग्रीमेंट कैन बी रिटन, दिस इज ऑल्सो अलाउड. ये भी अलाउड है कि अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, लेकिन आप खुद सोचिए, इट इज एन ओरल अग्रीमेंट, ओके, देन व्हाट इज द प्रूफ that you have agreed to such a such point. आपने किस किस बेसिस पे क्या क्या एग्रीमेंट किया है, इसका कोई प्रूफ नहीं रहता है ना. और इन केस देयर इज ट्रस्ट, इन केस देयर इज एवरीथिंग इज ओके, देन इट इज फाइन. अगर सब चीजें सही चल रही है तो ओरल एग्रीमेंट में भी प्रॉब्लम नहीं है. बट as soon as there is a mutual disagreement, as soon as there is a dispute, है ना, जैसे कोई डिस्प्यूट अराइज होगा, वहां पे अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. वहां पे बात आएगी कि आपने किस चीज पे एग्री किया है ना. तो इफ द एग्रीमेंट इज रिटन ओनली देन इट कैन बी प्रूव्ड, ओनली देन द डिस्प्यूट कैन बी सॉर्टेड. उसी समय डिस्प्यूट उसी से ही सॉल्व हो सकता है ना. जो भी अग्रीमेंट है उसको फॉलो किया जाएगा. तो अग्रीमेंट अगर रिटन होगा देन इट इज deemed to be better, है ना. although it is allowed to have an oral agreement, but still written agreement को अच्छा माना जाता है ना. तो जब written agreement होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, we call it a partnership deed, ठीक है. पार्टनरशिप डीड को हम और एक नाम से बुलाते हैं, आप देख सकते हो, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप. आर्टिकल्स जो है जनरली कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में देखा जाता है ना. जब आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ोगे, या आपने हो सकता है अपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा भी होगा कंपनीज के बारे में, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, है ना. वो ये सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, है ना. while the time company is registered, at that time it has to get certain documents ready. जैसे आर्टिकल्स क्या होते हैं, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना. और मेमोरेंडम में कंपनी की डिटेल्स होती है. तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हमने जनरली कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में देखा है, लेकिन जो पार्टनरशिप होता है वो कंपनी तो है नहीं, बट पार्टनरशिप डीड को हम आर्टिकल्स ऑफ द पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है. मतलब वो पार्टनरशिप के सारे अग्रीमेंट, सारे रूल्स को कवर करती है, ठीक है. तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो पार्टनरशिप डीड में रहती है, ठीक है. वाई इट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर ये रहेगी देन in case of any dispute, in case of any disagreement, it can be easily sorted. Okay, now we come to the very important and the last part, that is the limited liability partnership. This is a very recent concept, बहुत पुराना नहीं है ना. ये एक recent development है in the field of accounting, in the field of partnership especially. तो LLP इसका short form है, we call it limited liability partnership. जो normal जो partnership होते हैं, okay, the normal partnership form of business, there the liabilities of a partner is unlimited. और एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि अगर फर्म का जो पैसा है इट इज फॉलिंग शॉर्ट, है ना,
to repay the debts of the firm. Then the creditors of the firm can ask the partners to pay it from their pocket. That means this shows that each and every partner has an unlimited liability in case of a partnership firm. But in case of a limited liability partnership, यहाँ पे बात देखिए, टर्म ही नाम ही है लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है ना. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप was started under the Act, Limited Liability Act 2008. ठीक है, 2008 में एक एक्ट पास हुआ था, दिस इज नोन एज लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट, और उसके अंदर में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई. ठीक है, ये एक अलग तरीके का बिजनेस है. यू कैन नॉट कॉल इट प्योरली पार्टनरशिप, यू कैन नॉट कॉल इट प्योरली अ कंपनी, although it is not governed by Partnership Act. Indian Partnership Act 1932 वाला जो है वो LLP को गवर्न नहीं करता है. LLP is governed only by Limited Liability Act 2008. ठीक है, तो Indian Partnership Act of 1932 does not cover or does not govern LLP. Let's see LLP. What type of organization is an LLP? It is a body corporate. LLP एक body corporate है. Body corporate मतलब it is a form of company, you can say. Body corporate is a form of company. ठीक है, लेकिन कंपनी के सारे फीचर्स आप इसमें नहीं देखोगे और सारे फीचर्स आप पार्टनरशिप के भी इसमें नहीं देखोगे. लाइक सी, इट इज लीगली सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स अलग हैं और पार्टनरशिप अलग है. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, हम लोग ने सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ा आज के सेशन वो था नेचर ऑफ पार्टनरशिप. जो नॉर्मल पार्टनरशिप होती है, विच इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें हम लोगों ने देखा कि उसकी जो लीगल पोजीशन है वो सेपरेट नहीं है, है ना. एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से अलग नहीं मानी जाती, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इट हैज अ सेपरेट एंटिटी, इट इज अ सेपरेट एंटिटी, इट हैज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्टनर. तो पार्टनर से अलग एग्जिस्टेंस रखती है, आइडेंटिटी रखती है. It has perpetual succession. These are the features which we notice under companies. Companies की जब बारे में आप पढ़ोगे तो ये सारे features आप देखोगे. It has a separate entity. It has perpetual succession. Perpetual succession मतलब वो unlimited period के लिए formed है ना. वो it will exist and it has a you can say continuous existence, है ना. Perpetual succession. And the Indian Partnership Act does not apply to this. इसमें Indian Partnership Act apply नहीं करता. One more thing is any change in the partners any change in the partners or any form of change in the partnership does not affect the limited liability partnership. Limited liability partnership change नहीं होगा. पार्टनर्स की कॉम्पोजिशन में चेंज आता है ना. एक दो पार्टनर्स चले जाते हैं या कोई नया पार्टनर आ जाता है, उससे पार्टनरशिप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विल नॉट discontinue, it will not change, it will continue. Okay, उसकी existence and rights and liabilities nothing will be affected by the change in partners. लेकिन जो नॉर्मल पार्टनरशिप होती है उसमें जब भी कोई पार्टनर नया आता है तो फ्रेश एग्रीमेंट बनता है, जब भी कोई पार्टनर जाता है तो भी एग्रीमेंट होता है. ठीक है, तो हर जगह हर स्टेज में एग्रीमेंट पे इफेक्ट पड़ता है. ओके, इन नॉर्मल पार्टनरशिप, बट इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप देयर इज नो सच इफेक्ट विच इज सीन विद अ चेंज इन पार्टनर्स. अगर पार्टनर्स में चेंज आता है तो उससे LLP के राइट्स और एग्जिस्टेंस में लायबिलिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, so these are the things which we have covered in today's session. We covered the nature of partnership, its definition, its features, rights of the partners, partnership deed and LLP. Okay, we will cover some more portions from the same chapter in our next session. Okay, till then keep reading the book, go through the notes. If you find any difficulty, please feel free to contact me. Okay, thank you so much, students.